Okay. Hello, student. So today we are gonna read about headache and nursing management. Okay. So शुरू करने से पहले मैं बोल देती हूँ, headache is not just a simple pain or it is not a disease. It is a symptom. So it arises due to stimulations of pain-sensitive structures like blood vessels, meninges, and nerve. So these are the pain-sensitive structures. Because of the stimulation of these all structures, headache occur. Now, coming to the definition, so headache is pain or discomfort in the head, scalp or neck region. So headache क्या है? Headache मतलब pain or discomfort in the head, scalp or neck region. So it is one of the most common neurological complaint. Okay, as I have said, it is not a disease, it is a symptom and it occurs due to the stimulation of pain sensitive structures. Then coming to the types of headache. Now headaches is divided into two types, that is primary headache and secondary headache. Okay, now coming under the primary headache means the headache which are occurring due to no underlying pathology. Now primary headache mostly occur due to neurovascular or muscle mechanism. Now example of migraine, like primary headaches are of again divided into three subtypes, that is migraine, tension headache and cluster headache. Coming to the migraine, example is neurovascular, often unilateral and throbbing. These are the example of migraine headache. Then tension headache example are muscle contraction and band like pain. Cluster, that is severe around eye and occurs in cycle. Now coming to the secondary headache. Now secondary headache, as I have said, primary headache occurs due to no underlying pathology. मतलब कोई foreign body या फिर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस के वजह से primary headache नहीं हो रहा है. But secondary headache is occurring due to an underlying cause and it can be dangerous compared to primary headache. So dangerous कौन ज़्यादा है? Secondary headache. Now coming here, that is due to infection, meningitis, trauma, hypertension and brain tumor. Okay. So these are the subtypes of primary headache. Now causes, headache क्यों होता है? हेडेक होता है जब भी कोई स्ट्रेस लेता है. जब एग्जाम आ रहा है आप लोगों का तो आप लोग स्ट्रेस लेते हैं ना, तो उस टाइम हेडेक होता है. तो similarly due to lifestyle, dehydration, hormonal changes and medical changes, all these things are cause of headache. So that is stress and anxiety, lack of sleep, dehydration, eye straining. मतलब आई स्ट्रेन मतलब जोर लगा के पढ़ना, मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर चलते गाड़ी में पढ़ाई करना, दिस आर द आई स्ट्रेन, तब हेडेक होगा. हार्मोनल चेंजेस लाइक द एस्ट्रोजन चेंजेस कॉमन इन फीमेल ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, उस टाइम माइग्रेन होता है बहुत जन को. देन इन्फेक्शन, दैट इज साइनाइटिस एंड फीवर, हेड इंजरी एंड हाई बीपी. कमिंग टू द साइंस एंड सिम्टम्स. Now signs and symptoms मतलब clinical manifestations, that is symptoms help differentiating types. First is पेन, माइल्ड टू सीवियर. तो हम लोग पेन स्केल से मेजर कर सकते हैं कितना पेन हो रहा है, माइल्ड टू सीवियर. देन थ्रोबिंग और डल एक, देन नोजिया एंड वॉमिटिंग, सेंसिटिविटी टू लाइट और फोटोफोबिया, डिजीनेस, नेक स्टिफनेस एंड ब्लर्ड विजन. All these are the signs and symptoms. Like migraine में throbbing, nausea and photophobia. Then tension में tight band-like pressure, no vomiting. And cluster में severe unilateral pain, tearing and nasal congestion. So associated symptoms like vomiting or vision problem may indicate serious cause. So these all thing we have to keep in mind. अगर vomiting और vision problem हो रहा है headache के वजह से, it can be a serious cause. नाउ कमिंग टू द पैथोफिजियोलॉजी मतलब हेडेक क्यों होता है. सो हेडेक पहले ही हम बोल दिए थे, एक्टिवेशन ऑफ पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स इन ब्रेन. पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स मतलब क्या क्या है, हम बोले थे ना, ब्लड वेसल्स, मेनिंग्स एंड नर्व्स, ये सब का स्टिम्युलेशन होने से ही हेडेक होता है. नाउ कमिंग टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व. So activation of trigeminal nerve, then release of inflammatory mediators, that is CGRP and serotonin. Serotonin हम लोग को हैप्पी हार्मोन बोला जाता है.
देन वैसोडाइलेशन ऑफ द सेरिब्रल ब्लड वेसल्स एंड मसल टेंशन इन टेंशन हेडेक. सो हेडेक में क्या हो रहा है, सबसे पहले हो रहा है एक्टिवेशन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, देन रिलीज ऑफ केमिकल लाइक CGRP एंड सेरोटोनिन, and it causes vasodilation of cerebral vessels that is causing vasodilation of cerebral vessels that is causing pain. And in tension headache में क्या हो रहा है, टेंशन हेडेक में मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है जिसके कारण इस्चीमिया हो रहा है, जिसके कारण पेन हो रहा है. सो की कॉन्सेप्ट क्या है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, वेसल चेंजेस लीडिंग टू हेडेक. कमिंग टू द डायग्नोसिस, नाउ मोस्टली क्लिनिकली डायग्नोस्ड. पेशेंट हिस्ट्री. सो हिस्ट्री इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हेडेक के लिए. सबसे पहले है हिस्ट्री. हिस्ट्री में क्या क्या देखेंगे, पेशेंट को क्यों हो रहा है हेडेक, उसका सिचुएशन क्या है, वो किसके मतलब किसके वजह से इतना टेंस है या स्ट्रेस है, हम लोग वो पहले फिगर आउट करेंगे. सो हिस्ट्री इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. फिर टाइम क्या हो रहा है, उसका ऑनसेट, ड्यूरेशन, ट्रिगरिंग फैक्टर, सीवियरिटी, ये सब. फिर हम लोग न्यूरो एग्जामिनेशन करेंगे, दैट इज फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशंस. फिर इन्वेस्टिगेशंस आर डन व्हेन रेड फ्लैग्स आर प्रेजेंट. फिर रेड फ्लैग्स क्या है, जैसे पहले ही बोल दिए थे, सडन सीवियर हेडेक दैट इज वर्स्ट एवर, वो है एक रेड फ्लैग. देन फीवर प्लस नेक स्टिफनेस हो गया तो वो होगा सस्पेक्टेड केस ऑफ मेनिंजाइटिस. सो ये सब हम लोग का ध्यान रखना है. देन न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स लाइक CT एंड MRI इज नीडेड. सो सीवियर मतलब अगर उसको सीवियर हेडेक हुआ तब वो वर्स्ट एवर केस है. देन फीवर एंड नेक स्टिफनेस हुआ तो उसका सस्पेक्ट मेनिंजाइटिस है. एंड न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होने से CT और MRI ज़रूरत है. तो डायग्नोसिस में हम लोग क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंट हिस्ट्री, फिर आ रहा है फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, फिर आ रहा है CT एंड MRI, फिर आ रहा है ब्लड टेस्ट इफ इन्फेक्शन इज सस्पेक्टेड, एंड लंबर पंचर इन मेनिंजाइटिस केसेस. ओके, नाउ कमिंग टू द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इज हम लोग मैनेज कैसे करेंगे, ठीक है. सो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है जनरल ट्रीटमेंट. जनरल ट्रीटमेंट हम लोग देंगे रेस्ट एंड स्लीप, हाइड्रेशंस एंड अवॉइडिंग द ट्रिगरिंग फैक्टर. में जिसके कारण पेशेंट को बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है वो ट्रिगरिंग फैक्टर को रिमूव करेंगे. जैसे एग्जाम के कारण पेशेंट को हेडेक हो रहा है तो पेशेंट को रिलैक्स करवाएंगे बोल के कि उतना मतलब स्ट्रेस लेने का ज़रूरत नहीं है या फिर वैसा कुछ. तो ट्रिगरिंग फैक्टर्स हम लोग पहले रिमूव करेंगे, दैट इज रेस्ट एंड स्लीप, हाइड्रेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कोल्ड एंड हॉट कॉम्प्रेशन. फिर आता है फार्माकोलॉजी. फार्माकोलॉजी में सबको पता है हेडेक होने से पैरासिटामोल दिया जाता है. देन NSAID दैट इज NSAIDs दैट इज नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स. ये मॉडरेट पेन में दिया जाता है, माइल्ड पेन में पैरासिटामोल दिया जाता है. फिर आता है ट्रिपैंट्स दैट इज द माइग्रेन act or serotonin receptors. So overuse of painkiller can cause rebound headache. So हम लोग को वो ध्यान रखना है, overuse of painkiller can cause rebound headache. So last वाला है anti-migraine drugs that is triptans. Now coming to the nursing management. सो नर्सेस, हम लोग का नर्सेस प्लेज अ की रोल इन कंफर्ट एंड मॉनिटरिंग. दैट इज फर्स्ट हम लोग पेन एक्सेस करेंगे. पेन एक्सेस हम लोग यंग वॉकर्स स्केल से कर सकते हैं, दैट इज 0 to 10 स्केल. फिर हम लोग उसको प्रोवाइड क्वाइट एंड डार्क एनवायरनमेंट देंगे, प्रोवाइड क्वाइट एंड डार्क एनवायरनमेंट ताकि पेशेंट थोड़ा रिलैक्स फील हो. फिर उसके बाद वी विल रिड्यूस द स्टिम्यूली, मतलब जिसके कारण हेडेक हो रहा है वो रिड्यूस करेंगे. फिर मॉनिटर, वी विल मॉनिटर द वाइटल साइंस कि वाइटल साइंस स्टेबल है कि नहीं, वी विल मॉनिटर दैट. देन वी विल आइडेंटिफाई द ट्रिगरिंग फैक्टर्स लाइक द डाइट, स्ट्रेस और स्लीप जिसके कारण हेडेक हो रहा है. देन वी विल इंश्योर हाइड्रेशन एंड मेडिकेशन कंप्लायंस, मतलब जो मेडिकेशन जो प्रिस्क्राइब कर रहा है डॉक्टर ने वो देंगे उसके बाद. सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले पेन असेस करेंगे, फिर रिड्यूस स्टिम्यूली करेंगे, जैसे उसको डार्क एंड क्वाइट एनवायरनमेंट देंगे, डार्क एंड क्वाइट रूम. फिर उसको मॉनिटर द BP और वाइटल साइंस. फिर उसको पेशेंट को एडुकेट करेंगे ट्रिगरिंग फैक्टर के लिए ताकि पेशेंट खुद जान पाए उसको किसके कारण हेडेक हो रहा है. फिर हम लोग उसको
हाइड्रेशन एंड मेडिकेशन कंप्लायंस देंगे. मेडिकेशन क्या क्या था? मेडिकेशंस था पैरासीटामोल, फिर वो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स था, फिर एंटी माइग्रेन मेडिकेशंस. नाउ कमिंग टू द प्रिवेंशन. प्रिवेंट कैसे करेंगे? सो नर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंशन ऑल्सो. प्रिवेंशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस. सो सबसे पहले रेगुलर स्लीप साइकिल देना है. सो स्टेबलाइजेस द ब्रेन एक्टिविटी. फिर बैलेंस्ड मील उसको चाहिए. फिर अवॉइड ट्रिगरिंग फैक्टर एंड स्ट्रेस कंट्रोल. सो प्रॉपर स्लीप 7 to 8 hours, अवॉइड स्ट्रेस, देन रेगुलर मील्स, लिमिट स्क्रीन टाइम. स्क्रीन टाइम के वजह से सबको हेडेक होता है आजकल, क्योंकि उसके कारण आई स्ट्रेन हो रहा है, तो इसलिए लिमिट स्क्रीन टाइम एंड स्टे हाइड्रेटेड एंड अवॉइड ट्रिगर्स. कैफीन ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकता है हेडेक के लिए, अल्कोहल ट्रिगरिंग फैक्टर्स है, ब्राइट लाइट ट्रिगरिंग फैक्टर्स है, और क्या क्या ट्रिगरिंग फैक्टर्स पढ़े थे? स्ट्रेस भी ट्रिगरिंग फैक्टर है, स्लीप भी ट्रिगरिंग फैक्टर है. So regular sleep cycle stabilizes the brain activity. Balanced meals prevent hypoglycemia induced headache. Then avoid triggers like the caffeine withdrawal, alcohol and bright light, and stress control like the yoga, relaxation and techniques. ठीक है. So important point यहाँ पर है, वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ. अगर वर्स्ट हेडेक हुआ, बहुत सीवियर हेडेक हुआ, तो थिंक ऑफ इट एज अ सब आर्कनॉइड हेमरेज. फिर मॉर्निंग हेडेक और वॉमिटिंग हुआ, सो थिंक दैट एज ब्रेन ट्यूमर और रेज्ड आईसीपी. ब्रेन ट्यूमर और रेज्ड आईसीपी अगर मॉर्निंग हेडेक हुआ. फिर अगर हेडेक प्लस फीवर प्लस स्टिफ नेक हुआ, तो थिंक एज एन मेनिंजाइटिस. मेनिंजाइटिस, ठीक है. और अगर यूनिलैटरल पल्सेटिंग पेन हुआ, तो थिंक ऑफ इट एज अ क्लासिक माइग्रेन. सो पहले क्या है, अगर वर्स्ट हेडेक हुआ तो थिंक एज एन सब आर्कनॉइड हेमरेज. मॉर्निंग हेडेक और वॉमिटिंग हुआ तो थिंक ऑफ इट एज एन ब्रेन ट्यूमर और रेज्ड आईसीपी. अगर फीवर, हेडेक और नेक स्टिफनेस तीनों एक साथ हो गया, तो थिंक ऑफ एन एज एन मेनिंजाइटिस. और अगर यूनिलैटरल पल्सेटिंग पेन हुआ, तो थिंक ऑफ इट एज एन क्लासिक माइग्रेन. थैंक यू.